So this is where we are on the broad macros, and some data, sometimes people question why we invest in mid cap, why we invest in small cap, what is better, whether a large cap is better and all. Honestly speaking, we have a very, very different perspective on this. We believe that, there should not be any discrimination of investment based on the size of the company, because whatever is a large cap today was a mid cap yesterday and a small cap day before yesterday. In fact, investing in a small and mid cap takes away a lot of energy and time and resources for us, because it is very difficult to get data in small and mid cap, because you don't get regular updates from the management. You cannot rely them on 100%. The managements are also learning. They are not having the maturity stage like a large company. And, sometimes they do unrealistic diversification, take a lot of debt, and the companies go bust also. So for us, it is a big stress to invest in mid and small cap. But also we have to remember that a company which is like 4 lakh, 5 lakh crore, we can't expect it to become 40 lakh, 50 lakh crore. But a company which is 400, 500 or 4,000, 5,000 crore, the chances of it becoming 50,000 crore or 1 lakh crore is more. And I think that the investor go to the experts like us because they want them to invest in companies which can give them outsized returns, and they don't go to experts like us for investing in well-known names like HDFC Bank or Kotak Bank or TCS or Infosys, which I think they are themselves capable of doing it. So the only reason for them to come to us is that they want us to find out the next HDFC, next Infosys, and next TCS. So it is our fiduciary responsibility, even if it comes at a much higher cost and much higher stress and effort, to find out those companies and invest your money there. And these are the key themes which are running right now, which are very, very important for the country, and we think are structural themes. First is the financialization of the household savings. So we are seeing rapid shift from physical asset to financial instruments. We are also witnessing household savings increasingly directed into markets, which is equity market. And also we are seeing the impact of that on the equity market despite relentless selling by the FIs. It helps in long-term capital formation because the money which is saved finds its way to the financial institution, which in turn lend that money. Our growth is also driven by rising disposable incomes, digital platforms which are enabling it at a neck-break speed, and the financial literacy which is creating awareness and taking more money to the savings. So that is another thing. So I think I'm going a little fast, so I will slow down and will try to be a little slower. The another theme which is there, ये दूसरी theme है, water theme, which people are talking about. जो बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में देखा है. अभी हमने रिसेंटली गवर्नमेंट का फोकस देखा है यमुना पे. एंड इससे भी ज्यादा अगर आप देखेंगे, कुछ दिन पहले एक मैप आया था इंडिया का, जिसमें स्टेट वाइज सीवेज ट्रीटमेंट के परसेंटेज बताए गए थे. अगर आप देखोगे तो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा कि पिछले 5-10 वर्ष में भारत में काफी सारे स्टेट है जहाँ पे 30 से 40% तक सीवेज ट्रीटमेंट चालू हो चुका है और हो रहा है. अब हम उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है बैलेंस 60% के लिए, और दूसरा ये है कि काम हो रहा है. सो वी आर सीइंग लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन द सीवेज ट्रीटमेंट साइड, एंड वो बहुत जरूरी है बिकॉज ये सरकार का फर्ज है कि सबको साफ सुथरा पानी प्रदान करे, और ये हमारा हक भी है. तो इस पर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है. हमने काफ़ी सारी कंपनीज देखी है जो इसमें काम कर रही है एंड बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे EMS लिमिटेड है, विएटेक वबाग है, इन्वायरो इंफ्रा है. ये सारी कंपनियां जो बहुत काम कर रही है इस इंडस्ट्री में. तीसरा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है. अभी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. अगर आप देखेंगे कोई भी कंट्री को प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 3 चीज चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल. उसमें लैंड इंडिया जैसी कंट्री में थोड़ा कम उपलब्ध है, बट फिर भी गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करती है. कैपिटल, अगर आपका सेंट्रल बैंक अच्छा काम कर रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल कर पा रहा है तो कैपिटल मिलना इतना मुश्किल नहीं होता है. बाहर से भी मिल जाता है, डोमेस्टिकली भी मिल जाता है. जो एक ही चीज सबसे डिफिकल्ट होती है वो लेबर होता है. अगर आप चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज को छोड़ दे, कोरिया जैसी कंट्री, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री को छोड़ दे जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो उनको छोड़ के बाकी सब कंट्री में डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है लेबर की प्राइसेस. सो मुझे
अगर आप ये देखेंगे जब भी कोई कंट्री पास्ट 20, 30, 50, 100, 200 साल में विकसित हुई है, फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कंट्री का जो उसका ट्रांजिशन हुआ है, तो उस समय में हुआ है जब उसके पास लैंड और लेबर तो खैर सबके पास था, जब उसका लेबर जो था, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन थी, वो वर्किंग पॉपुलेशन से कम थी, यानी कि घर में काम करने वाले लोग ज्यादा थे जितने घर में आराम करने वाले थे उसकी तुलना में, अगर सही आसान शब्दों में कहा जाए। तो जब भी देश में वो परिस्थिति बनती है जो कि मैथमेटिकली 14 से 40 साल तक बन सकती है, मतलब टोटल किसी भी कंट्री के भविष्य में 14 से लेकर 40 साल तक का ही पीरियड होता है जब मैथमेटिकली उनकी वर्किंग पॉपुलेशन काम डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा होती है। अगर उस वक्त वो कंट्री अपने पॉलिटिक्स को मेंटेन कर पाए, स्टेबिलिटी दे पाए, बॉर्डर को सुरक्षित रख पाए, तो वो बहुत बड़ा चांस होता है कि वो कंट्री विकसित हो सकती है या डेवलप्ड हो सकती है। हमने, अगर आप देखोगे, चाइना चाइना 2000 में हमारे और चाइना के बीच में 30% का इकोनॉमी का गैप था, हमारे 30% कम इकोनॉमी साइज थी। लेकिन उसके बाद 9/11 अटैक हुआ, जिसके बाद जो अमेरिका जो हमेशा चाइना को कंट्रोल में रखता था, वो उसने चाइना पे ध्यान देना से ध्यान कम कर दिया, और वो लोग लादेन को ढूंढने लग गए। बाद में जो बिल क्लिंटन आए, उनकी अपनी कंट्रोवर्सी थी, ओबामा की अलग कंट्रोवर्सी थी, उसके कारण 12, 13, 15 साल का पीरियड चाइना को मिला जब उसने 17% CAGR ग्रोथ करके अपनी इकोनॉमी को जो 1 ट्रिलियन के आसपास थी उसको 17-18 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया। और जो उसका गैप यूएस के साथ 7-8 टाइम्स का था, वो गैप कम होकर 2 टाइम पे आ गया। और हमारा गैप जो सिर्फ 30% का था, वो बढ़ के 4 गुना हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो आपको गोल्डन पीरियड मिलता है, जब आपकी वर्किंग पॉपुलेशन बड़ी है, उस टाइम में अगर आपको चारों तरफ से पॉलिटिकल सपोर्ट और स्टेबिलिटी मिलती है, देन यू कैन ग्रो वेरी फास्ट, आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है। वो समय हमारे लिए 2014 से लेकर 2032 या 2036 तक है, उसके बाद थोड़ा कम होते जाएगा, 2048 तक चलने वाला है। 2014 में न्यू गवर्नमेंट आई, उसने कुछ इनिशियल प्रॉब्लम सॉल्व किए, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जीएसटी, डिमॉन वगैरह। तो उसमें 3-4 साल चीजों को स्टेबलाइज करने में लग गया। और उसके बाद जब हमारी ग्रोथ मोमेंटम पकड़ना चालू ही की थी 2019 में, तब 2020 में कोविड ने आके हमको हिट किया, पूरी वर्ल्ड को हिट किया, तो हमारे 2 साल खराब हुए। उसके बाद 2022 में हमने बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग थीम हमारे लिए बहुत अच्छा करे, क्योंकि आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपोर्ट क्या है। गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट में एक ही फर्क है, एक लेवल का ही फर्क है। सर्विस में आप डायरेक्टली किसी के लिए काम कर रहे हो, अपना आदमी प्रोवाइड कर रहे हो, जो आईटी इंडस्ट्री करते हैं, जिसमें हमने महारत हासिल की हुई है। और गुड्स में क्या होता है कि आप वो सामान बना के बेच रहे हो। अब वो सामान में जो रॉ मटेरियल आता है, वो तो मोस्टली कमोडिटी होता है, उसका भाव मोर और लेस सब जगह सेम होता है, और हम भी इम्पोर्ट ही करते हैं लगभग। लेकिन उसमें जो हम अपना लेबर डाल के जो वैल्यू ऐड करते हैं, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जब गुड्स भी एक्सपोर्ट होता है, तो एक तरह का लेबर एक्सपोर्ट होता है, राइट। बट लेबर एक्सपोर्ट करने पे बहुत सारे किंतु परंतु उठ जाते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन जो लोकल होती है वो सब ऑब्जेक्शंस करती है। बट गुड्स जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, हालांकि अभी टैरिफ बार आया तो वो नया है। पर लगभग लगभग ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लेबर को एक्सपोर्ट करें, तो हमारे पास अगले 10 से 12 साल, 15 साल का समय है, जब हम इसको गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं, जब हम अपना लेबर को बहुत ज्यादा भाव में गुड्स के फॉर्म में छिपा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कर सकते हैं। उसीलिए गवर्नमेंट का भी इतना फोकस PLI स्कीम और मैन्युफैक्चरिंग पे है। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का बहुत बहुत बड़ा सक्सेसफुल स्टोरी होने वाला, सेम लाइक IT, सेम लाइक ऑटो एंड सेम लाइक केमिकल। तो हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट में, हमारी टीम्स है जो पूरे टाइम इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में घूमते रहती है। हालांकि हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे है, लेकिन हमारे काफी सारे लोग जो इंडिया के मेन इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जैसे चेन्नई तमिलनाडु का जो बेल्ट है, जहाँ पे श्री पेरम्बदूर है, कर्नाटक के बेल्ट बेल्लारी एंड ऑल अदर बेल्ट्स, बड़ौदा, जामनगर, राजकोट, मोरबी, हिम्मतनगर, यहाँ हमारी हमारे लोग घूमते रहते हैं रेगुलरली, और हम ढूंढते रहते हैं थीम्स, नई नई थीम क्या है, कहाँ काम हो रहा है, क्या हो रहा है, और हम ढूंढ के लाते हैं कि कौन से सेक्टर में तेजी है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत यंग लोगों को हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हुए, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी थीम होने वाली है। सो ये हमारी तीसरी थीम है। और चौथा स्पेशलिटी केमिकल है, जहाँ पे हमारा काफी अच्छा हो रहा है, क्योंकि यूरोप में पॉल्यूशन को लेके ज्यादा कंसर्न है, एंड उसीलिए वो लोग इतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं लोकल केमिकल इंडस्ट्री को। प्लस चाइना का कंपटीशन भी कम होते जा रहा है, बिकॉज एक तो चाइना के खुद के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना पे रिस्ट्रिक्शंस भी आ रहे हैं, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता चाइना से चीप गुड्स इंपोर्ट करे, क्योंकि किसी को उसका सोर्स, वे, प्रोसेस नहीं मालूम है। दूसरा, सबको ये चाहते हैं कि China+1 जरूर हो, सबके पास एक ऑल्टरनेटिव हो। ये हमारी परफॉर्मेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 जनवरी तक तो हम काफ़ी, हमारा फर्स्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस में हम टॉप 10 में PMS में थे। जो ये फरवरी मंथ गया है, आप सबको मालूम है कि काफ़ी सबको नुकसान हुआ है, इंडेक्स भी काफ़ी नीचे गया है।
और हम लोग क्योंकि हमारा अल्फा जनरेट करते हैं, हम जो स्मॉल एंड मिड कैप थीम्स ढूंढते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 26% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स 22-23% डाउन है। तो हम भी उसी के रेंज में, हमारा भी डाउन है, हमारा 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, बट हम रिकवर भी उतना फास्ट कर रहे हैं। हमारा जो ब्रेकआउट है सेक्टर्स का, वो हमने राइट में ग्राफ में दिखाया हुआ है। तो हमारे पास सारे सेक्टर का अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कोई एक सेक्टर नहीं जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया हुआ है। और हमने कोई भी, हमारा एक वैल्यू फंड है मेंटली, तो हम कोई भी महंगा स्टॉक, मल्टीपल पे महंगा स्टॉक नहीं लेते हैं। एंड ये कुछ कंपनीज है जिनमें हमने इन्वेस्ट किया है। एंड सारे नाम, हम सारे नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट जो टॉप 10-15 नेम्स है वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, और सबका हमारे पास लॉजिक है, रीजनिंग है। एंड अगर आपको कोई भी स्टॉक पे भी कोई सवाल पूछना हो तो हम उसका आंसर देने को तैयार हैं। ये 2 स्कीम के 10-10 स्टॉक्स है जो हमने डाले हैं, और सबके पीछे बहुत स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग रीजंस है क्यों हमने लिया है। तो ये